through its efforts, a party that won us freedom. A party whose leadership in the past that we can be proud of. And I cannot see my party in the situation that it is today. It breaks my heart. The country is facing serious challenges on all fronts. While the Prime Minister will go to Uttarakhand, China has infiltrated into our territories there. What has happened in Afghanistan presents a great danger to security in Jammu and Kashmir. The Prime Minister's visit to the United Nations and the response that he got is something that you all know about. Millions of people are now steeped in poverty. Unemployment is high. The government has to sell valuable assets or prepare to sell valuable assets that belong to the people of India because they don't have resources. And in that state, for the Congress party to be in this state is what saddens me. We are the ones that need to fight unitedly together against a government that sits in Delhi today, which according to me has no legitimacy to function even for a single day. और इस स्थिति में क्या हो रहा है? हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। सुष्मिता जी चली गई। अभी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर गोवा के फिलेरो साहब वो छोड़ के चले गए और उनके साथ कई और लोग चले गए। जितिन प्रसाद जी को मंत्रालय मिल गया। सिंधिया जी पहले ही चले गए थे। हमारे लेट प्रेसिडेंट जो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, उनके बेटे अभिजीत ने ज्वाइन कर लिया, छोड़ दिया कांग्रेस। ललितेश त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश से चले गए। हरियाणा में कुछ लोग चले गए। सुधीरन केरला में जो फॉर्मर हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, लेजिस्लेटर भी रहे, वो चले गए। सुना है स्पीकर भी रहे। तो सवाल उठता ये है कि क्यों जा रहे हैं लोग? हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उनकी निंदा भी कर सकते हैं कि क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। अब in our party, at the moment, there is no president. So we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. I am given to understand and I believe that one of my senior colleagues is perhaps written or is about to write to the Congress president to immediately convene a CWC, so that at least some things that we cannot say in public, at least within the CWC, a dialogue can take place as to why we are in this state. We are the ones who can fight the BJP. And let me tell you one thing and be assured about it. We are not one of those who will leave the ideology of the party and go anywhere else. In fact, it's ironic कि जो लोग इनके खासम खास थे वो तो इनको छोड़ के चले गए और जो लोग ये समझते हैं इनके खासम खास नहीं हैं वो आज भी इनके साथ खड़े हैं। This is the irony of the Congress party. तो इस स्थिति में मैं तो यही कहूंगा कि हिंदुस्तान के हर कांग्रेसमैन को अब ये सोचना चाहिए कि पार्टी कैसे आगे मजबूत की जाए, पार्टी आगे कैसे बढ़े।
और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो कांग्रेसमैन हमें छोड़ के चले गए वो वापस आए, क्यों कांग्रेस ही ऐसी आइडियोलॉजी है जो इस देश की जो बुनियाद है, जिसके आधार पे हमारी रिपब्लिक बनी थी, उसको बरकरार रख सकती है। इट्स द कांग्रेस पार्टी अलोन कैन सेव दिस रिपब्लिक, बिकॉज द प्रेजेंट गवर्नमेंट, द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन is destroying the very foundations of our republic. So what do we need? We need an open dialogue. We need conversations. We need to understand each other's point of view. I don't want to talk about Punjab, but a border state where this is happening to the Congress party means what? It's an advantage to the ISI in Pakistan. We know the history of Punjab and the rise of extremism there. We know how forces across the border exploit the situation to forces across the border rise of extremism. I don't want to talk about Punjab, but a border state where this is happening to the Congress party means what? It's an advantage to the ISI in Pakistan. We know the history of Punjab and the rise of extremism there. We know how forces across the border exploit the situation to create an atmosphere of uncertainty. It is these forces that are the biggest threat to our country. The Congress party should make sure that they remain united. If somebody has an issue, that issue has to be discussed. Consultations must take place from the senior-most members of the party. The organizational structure must be strengthened. That is to be done if the organization is in place, if there is a president, if there is an elected CWC, if there is a central election committee, if the structure is strengthened bottoms up. I want to end with the words of Mahatma Gandhi, and this is very important. This is what he said. He said, I have repeatedly observed that no school of thought can claim a monopoly of right judgment. We are all liable to err and are often obliged to revise our judgments. In a vast country like this, there must be room for all schools of thought. And the least, therefore, that we owe to ourselves as to others is to try to understand the opponent's viewpoint. And if we cannot accept it, respect it as fully as we expect him to respect ours. It is one of the indispensable tests of healthy public life. That's what the Mahatma said. So listen to our point of view. If you don't accept it, fine, but at least listen. We respect your point of view, but have the space to respect ours. Allow us that dialogue. There are no monopolies. No monopoly should be created in the power structures of any country, nor in the power structures of any party. And I'll again quote Mahatma Gandhi when he said, democracy cannot be worked by 20 men sitting at the center. It has to be worked from below by the people of every village. Please remember the words of the Mahatma and do what is good for the party. Thank you. सर, तो G23 की चर्चा साल भर से चल रही है, 1.5 साल, तकरीबन साल सवा साल से चल रही है। पहली बार आधिकारिक तौर पर उस ग्रुप की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ये समय क्यों चुना आप लोगों ने? क्या कल जो 2 युवा नेता की ज्वाइनिंग हुई है वो वजह है, या पंजाब में जो
एक क्राइसिस हुआ है पॉलिटिकल, वो वजह है। अभी क्यों, फिलहाल क्यों? नहीं, कोई ऐसी वजह नहीं है। वजह तो इतनी ही है कि हम समझते हैं कि कांग्रेस को हम कमजोर होते देख नहीं सकते। हम कितने समय से इंतजार कर रहे हैं और फिर इंतजार करने की भी तो हद होती है। हम तो उन लोग में से हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। हमने कभी कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे। आज भी हम यही बयान दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, मजबूत कीजिए, बुनियादी तौर से मजबूत कीजिए, लोगों की बात सुनिए, ऑर्गेनाइजेशनल को स्ट्रेंथन कीजिए। हमने जो घटनाएं पंजाब में हो रही थी, हमने कुछ कहा? आज तक नहीं कहा। हमारे में से किसी ने नहीं कोई टिप्पणी नहीं दी। हमारी वजह से तो नहीं हो रही। सर आपने एक बात कही, पंजाब में ये स्थिति है, आपको क्या लगता है जो पंजाब में अभी स्थिति बनी हुई है, नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में लाना, अध्यक्ष बनाना, एक पुराने मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलवा देना और उस मुख्यमंत्री का ये कहना कि जिस तरह के व्यवहार मेरे साथ हो रहा है वो उचित नहीं है, फिर ये गलती किसकी है? सबसे पहले तो इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये बातें और ये चर्चा या तो CWC में होनी चाहिए या कांग्रेस की एक ऐसी बैठक में होनी चाहिए जो पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है। सर आपने एक बात कही, सर आपने एक बात कही, जब भी इस तरह की आप या जो तथाकथित जो G23 है, जब भी ये मौलिक सवाल उठाता है तो उसको कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता एक परसेप्शन बनाते हैं कि आप लोग गांधी परिवार और खासतौर से राहुल गांधी के खिलाफ है। जब भी इस तरह के संगठनात्मक बदलाव की बात आप लोग करते हैं, कोई भी इंसान और कोई भी जो पार्टी का वर्कर है वो किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकता। एक वर्कर किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकता। अगर वो कांग्रेसमैन है तो ये सवाल ही उचित नहीं है। हम किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकते, हम तो पार्टी के पक्ष में हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। सर मेरा सीधा सवाल है, आपने एक बात कही कि हमें पता है कि हमें नहीं पता कि कौन फैसले ले रहा है और पता है कि कौन फैसले ले रहा है। क्या ये आपका ये इशारा राहुल गांधी की तरफ है? क्योंकि नहीं, कोई पंजाब को लेके जो भी बैठकें हुई वो राहुल गांधी के घर पर हुई, कांग्रेस अध्यक्षा के घर पर नहीं हुई, नंबर 1। और नंबर 2 सर, क्या इस दौरान में जब तक आपने चिट्ठी लिखी है CWC की बात में लास्ट में ये कहा गया था कि एक जल्द समय आएगा, अभी पेंडेमिक चल रहा है, तो उसके बाद में जैसे ही समय आएगा उसमें कोई आप लोगों के कोई कम्युनिकेशन हुआ है क्या अभी तक या नहीं? नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल है, ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो उसके बारे में आगे बात करने का कोई औचित्य नहीं है। तो सर क्या जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो निर्णय गलत लिए जा रहे हैं क्या? इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं कुछ कहूंगा। गलत हो सही हो, ये चर्चा वर्किंग कमेटी में होनी चाहिए या कहीं और होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप लेकिन सिद्धू को बनाना क्या आपको लगता है गलत फैसला था जिस तरीके से? फिर वही बात, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि किस आधार पे फैसला लिया गया। वो तो जिन्होंने लिया वो बताएंगे। सर आप कम्युनिकेशन हुआ क्या सर? नई CWC की नई तारीख को लेके कोई कम्युनिकेशन हुआ क्या? क्योंकि हमें नहीं मालूम। सर आप कह रहे हैं कि आप सॉरी, What are the steps the party should well, the PCC should be given a free hand. The DCC should not be appointed from Delhi. PCC should not be appointed from Delhi. The organizational structure at the bottom, at the village level, should be strengthened. This is something that the party will address, provided the party has a full-fledged conversation. सर साहब, आपने जो मांगे रखी हैं, बातें करी, 1.5 साल 1.25 साल हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा, कोई सुनवाई नहीं होती रही, तब आप लोग क्या करें? जब चलता रहा तो फिर हम भी देखेंगे, हम भी चलेंगे, एक पार्टी के साथ ही चलेंगे। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि आप लोग बातचीत के लिए तैयार हैं। कोई अध्यक्ष नहीं है। सिब्बल साहब, 1 सेकेंड। सिब्बल साहब, आपने कहा पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है, एक अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे सोनिया गांधी क्या फैसले लेने के लिए अधिकृत नहीं है? नहीं, देखिए, इसके बारे में मैं कह चुका हूं, जो कहना था। सवाल आपने पूछ लिया, मैंने उसका जवाब दे दिया। उसके आगे
सवाल उठाने की जरूरत है। सर आप कह रहे हैं कि आप लोग बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और किन लोगों से करना चाहते हैं जो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं? मुझे नहीं पता भैया, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। कोई सर आपको लगता है ऐसा ही चलता रहा तो कोई और विकल्प आ जाएगा? सर विपक्ष उसमें कहा गया कि कांग्रेस डूबता जहाज है और उसको बचाना जरूरी है, देश को बचाना है, तो वहाँ हमारे स्पोक्समैन बैठे हुए थे ना, उनसे पूछिए। सर आपको लगता है कि विपक्ष में कोई और विकल्प आ जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी की हालत यही रही तो 2024 से देखिए, पहले? सबसे बड़ा मुद्दा अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एक ये भी है कि पार्लियामेंट जब चलती है तो कई गंभीर मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। अभी देखो पेगासस की बात हुई, ठीक है ना, और पेगासस में आपको मालूम है कि आपके मोबाइल फ़ोन के द्वारा जो आप कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, वो सरकार सुन सकती है। अब ये मुद्दे तभी उठेंगे ना पार्लियामेंट में, अगर पार्लियामेंट में चर्चा होगी। अच्छा, चर्चा तभी होगी ना कि विपक्ष मजबूत होगा। विपक्ष मजबूत तभी होगा ना अगर कांग्रेस मजबूत होगी, और अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा, कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, तो चर्चा होगी कैसे? और हम सवाल कैसे पूछेंगे सत्ता पक्ष से? जवाबदेही कैसे होगी? तो इसका नुकसान केवल हमारे देश को नहीं हो रहा। कांग्रेस का नुकसान होना मतलब देश का नुकसान होना, देश के भविष्य का नुकसान होना। कांग्रेस का कमजोर होना मतलब देश की नींव का कमजोर होना। ये असलियत है और इसलिए हम दुखित हैं। इसलिए आज के दिन आई एम रियली वेरी वेरी अपसेट दैट आई हैव टू एक्चुअली कम टू यू. It was not the desire of all of us to actually do this, but we have no choices anymore. Sir, Abhishek Banerjee has said that we both have the same goal of defeating BJP, but Congress doesn't have in its belly the fire in its belly to fight BJP. Do you agree? ऐसा है कि why should I make a statement of a leader of another political party quit the Congress party? Let the leadership of the Congress party make that statement. सर आपको ये नहीं लगता ये स्थिति भी बहुत बड़ी विकट बनी हुई है? शरद पवार साहब कहते हैं, बयान उनका आया कि वैसे जमींदार की तरह कांग्रेस है जिसकी पहले बहुत बड़ी जमीन हुआ करती थी। टीएमसी का जो माउथपीस है वो ये कह रहा है कि राहुल गांधी फेल्ड हो गए अपोजिशन लीडर के तौर पे। एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टियों का अपोजिशन, क्या आप लोगों के यहाँ भी जमावड़ा हुआ? एक क्यों नहीं सामंजस्य बैठ पा रहा है? क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से ही विपक्ष एक देखिए, जो बाकी लोग कह रहे हैं, जो बाकी नेता कह रहे हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरा तो केवल एक ही मकसद है, यहाँ जो आम कांग्रेसमैन की पीड़ा है वो आपके द्वारा देश के सामने रखना और देश को अवगत कराना कि हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पार्टी एकजुट होकर उभरे और कांग्रेस को मजबूत करे। इसी सोच के साथ मैं आपके सामने आ जाया। सर मेरा सवाल है, दो सवाल है सर, दो सवाल है। पहला ये कि आपने कई नेताओं के नाम गिनाए जिन्होंने हाल के वक्त में पार्टी को छोड़ा है। दूसरा, आपने कहा कि संसद सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। तो जिन नेताओं ने पत्र लिखा था साल भर पहले, तो क्या कम्युनिकेशन गैप है लीडरशिप की तरफ से? आप लोग से कुछ सुझाव नहीं मांगा जाता? दूसरा सवाल यह है कि सर पंजाब की सियासत को आप भी देख रहे हैं, आप पार्टी लीडरशिप को क्या सुझाव देंगे? आप सार्वजनिक मैं कोई किसी को सुझाव नहीं देना, मेरी ऐसी कोई हैसियत ही नहीं है मैं किसी को सुझाव दूं। मैं तो इतना कहूंगा, अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं जरूर अपनी बात सामने रखूंगा। सर पहले कम्युनिकेशन गैप वाला नहीं, वो तो मैंने पहले महात्मा गांधी को कोट कर दिया, और इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? Sir, in Kerala also we are seeing a big turmoil. People like Umman Chandi, Ramesh Chennithala, everyone is unhappy, and VM Sudhiran has resigned from the AICC posts also. So I think Rahul Gandhi is in Kerala today. It is better that question be addressed. Are those leaders in touch with you? मेरा सवाल ये है कि आप लोग 1-1.5 साल से लीडरशिप के साथ संवाद करना चाहते हैं। पहले भी आप लोगों ने प्रयास किया, आप लोगों के ग्रुप का एक नाम रख दिया गया G23। एक बार फिर आप लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है। ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे, और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। सर ये पार्टी आप लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं दे रही है। CWC की बैठक बुलाई नहीं जाती, पार्टी प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा।
मीडिया में आप लोगों को बोलना पड़ रहा है, क्या लीडरशिप आप लोगों को अवॉइड कर रही है? मुझे नहीं आप मालूम। लोगों के कंसर्न को एड्रेस नहीं करना देखिए चाहती देखिए है? मैं या तो एक जनरेशनल चेंज के नाम पे आप लोगों को देखिए मैं तो आपकी बात, आपका सवाल समझ रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? मैं तो बात करना चाहता हूँ, मैं तो यही कह सकता हूँ। Sir, is the G23 expanded? What do you think is ailing the Congress party? Is it because of the leadership, the conduct of the leadership that is ailing the Congress? No, I don't think that there is one particular issue. I think if the Congress party functions consistent with the provisions of its constitution, I think part of the problem will be resolved. Sir, is this G23 expanding? It was never G23. It was already much more. It was G23 plus. Now, amongst the G23, some minuses happened, but many pluses also happened. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you.